टेंथ मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोग जो है सीख चुके हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं, और अब हम यहाँ पर देखेंगे अलजेब्रिक मेथड, है ना। सो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. There are 3 methods of solving these types of linear equations. First is substitution method. Substitution method we will discuss here, and second one is elimination method, and third one is cross multiplication method. As you know that for this year, this session 2020-21, cross multiplication method has been removed temporarily for class 10th board exams, but still we will discuss it and we will learn it for our further use. So let us start today's session of learning substitution method. So let's start, and we take one example and then we will see how we solve the linear equation in 2 variables by using that substitution method. So first we take one example, that is 2x plus 3y is equal to 11, and second equation is 2x minus 4y is equal to minus 24. Okay, so one tip is from my side: whenever you are going to solve any equation, any problem, then first of all you must recheck the question, the problem which you have written in your notebook from your textbook or from question paper. So recheck once again. So we have equation 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Always remember that you must make it a habit to recheck your problem. Now, what to do? As we know that we are learning here substitution method, so we will take out the value of x or value of y from one equation and we will substitute it in second equation. So here we are going to take the value from any one equation. For this purpose, we can take the value from first equation or from second equation, whatever you desire and whatever it is easier. So suppose we are taking this equation number 1, and here what is given, 2x plus 3y is equal to 11. This is equation number 1 and this is equation number 2. These were given. So suppose we can find out the value of y in terms of x, and or we can find out the value of x in terms of y. Both the way are there, in value of y in terms of x or value of x in terms of y. So suppose here we are going to take the value of x in terms of y. So what will be the value of 2x? 2x is equal to 11 minus 3y. And then what about x? x is equal to 11 minus 3y upon 2. तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया और उससे x की वैल्यू निकाल ली है, किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में. ये x की फाइनल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये y के टर्म्स में हमने उसको एक वैल्यू निकाल ली है. सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमने ये वैल्यू किससे निकाली है? फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो उसको रखेंगे कहां? सेकेंड इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो उसको कहां रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में. ये ध्यान रखना है. सो व्हाट वी राइट हियर, substituting वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये हमने 1 से फाइंड आउट की थी. So we are going to put this value in equation number 2. What was equation number 2? 2x minus 4y is equal to minus 24. And in the place of x, we are going to put this value.
So in the place of x we are writing 11 minus 3y upon 2 and others will remain same, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहां ये बाई चांस ऐसा है कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, सो वी विल कैंसिल इट आउट। अगर कैंसिल नहीं होगा देन व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर थ्रू आउट द इक्वेशन। सो हियर बाई चांस दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल। व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24, and 11 minus 3y and minus 4y, these will combine together to make 7y is equal to minus 24. So minus 7y is equal to, this will go to the right side and this will be negative. यहां पर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो minus 24 and minus 11 both will combine, then we will get minus 35. Okay, minus minus will be cancelled out. So what will be the value of y? Y is equal to 35 upon 7, that is equal to 5. इस तरह से यहां पर y की वैल्यू आपको मिल गई है 5, ठीक है ना। So we have got the value of y. Then what will we do now? जब y की वैल्यू मिल गई तो हम उसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y. So we are taking next part of this problem and we are putting y is equal to 5 in this equation, or you can say that this is equation number 3. So putting this value of y in equation number 3. So just put down. So what is the value of x? X is equal to 11 minus 3y upon 2, and when we put 5 in place of y, y के प्लेस पर हम कितना रखने जा रहे हैं, 5 रखने जा रहे हैं। So देखिए 3y means 3 into y, 3y का मतलब होता है 3 और y का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 into, in place of y you are writing 5. So just calculate 15 upon 2. So what is the value of x? This will be minus 4 in the numerator and divided by 2. Divide करेंगे, so we will get the value of x as minus 2. In this way you are getting the value of x and value of y. So finally we will write answer, x is equal to minus 2 and y is equal to 5. Okay, actually this was the problem number 2 of exercise 3.3. So one more thing was asked in this question, that if y is equal to mx plus 3, then find out the value of m. So if y is equal to mx plus 3, so easily you can find out the value of m by putting the values of y and x both. So in the place of y you will substitute 5 and m will remain same. What is the value of x? Minus 2. So minus 2 into m, that is minus 2m plus 3. Now as you have already have studied in class 9th, you can find out the value of m very easily. 3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 5 minus 3 कितना हो जाएगा 2, और minus 2m है, और जब minus 2 से हम डिवाइड करेंगे so we will get minus 1. m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? minus 1. So here one more thing we are getting, m is equal to minus 1. So this was question number 2 of exercise 3.3, and you also have studied and learnt the method of substitution in this question. We will take more questions to understand it better. So one more question I am going to take here. Suppose we have another problem which student feel a little bit difficult, then in the form of fraction 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to
-2. This was equation number 1, and another equation was x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6. And again we have to use the method of substitution here, है ना. हमें फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है और उसी से हमें इनको सॉल्व करना है. लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन है वो इक्वेशंस थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में ना हो करके तो कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना. सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. वी कैन simplify these equations, and then we can solve these by using the substitution method. So how we will simplify these equations? It's very easy. Actually here denominator is 2, here denominator is 3. So what is the LCM of 2 and 3? LCM of 2 and 3 is 6. So one method is that you can take LCM of LHS and then send that LCM to the right side in multiplication. एक तो ये कर सकते हैं कि इन दोनों का LCM क्या है 6, तो यहाँ पर हम पहले LCM लें और फिर बाद में जो डिनोमिनेटर 6 आएगा उसको हम राइट साइड में मल्टीप्लाई में सेंड करें. ठीक है, एक ये मेथड है. दूसरी मेथड ये है कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि LCM 6 है तो हम पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें. दैट मे बी ऑल्सो ईजियर. सो multiplying both sides by 6. 6 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें. What do we get? We get 3x upon 2 into 6. हर एक टर्म में 6 से मल्टीप्लाई होगा. माइनस 5y upon 3 into 6. राइट साइड में भी होगा -2 into 6. क्या मिल जाएगा? 2 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स. 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा तो 3 into 3 9x. 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यहाँ 2 मिलेगा. 2 into 5 यानी 10y और -12. ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में, जो हमारा नॉर्मल फॉर्म जैसा रहता है, जैसा हम प्रैक्टिस में है. इन द सेम वे यू कैन सी हियर ऑल्सो. हियर डिनोमिनेटर्स आर 3 and 2. सो अगेन LCM विल बी 6. तो 6 से हम अगर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? यहां पर भी हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6. सो x upon 3 into 6. हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हम 6 से ही कर रहे हैं इंटू 6. ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. 3 से कैंसिल करेंगे इसको 2 टाइम्स. 2 into x 2x. 2 से ये 3 टाइम्स. 3 into y 3y. और ये दोनों पूरे कैंसिल हो जाएंगे तो यहां मिलेगा 13. इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गई. अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. आप जानते हैं कि वही मेथड में अप्लाई करना है. या तो इससे x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर इससे x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. अब हम चाहें तो इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. या अगर आपने इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 एज्यूम कर लिया था तो आप इनको इक्वेशन नंबर 3 और 4 एज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ किससे इजी है? अगर हम इससे फाइंड आउट करें तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा या 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इससे फाइंड आउट करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये ईजियर है, तो हम इससे अगर वैल्यू निकाल लें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा. वैसे होने को इससे भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी 9 से और 10 से डिवाइड करने में आप लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और 2 और 3 में कंफर्टेबल फील करते हैं. सो इन दिस वे यू कैन टेक इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो. और इसलिए भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमेशा आपको फर्स्ट इक्वेशन से ही वैल्यू निकालनी है और सेकेंड में रखनी है, बल्कि आप चाहें तो सेकेंड इक्वेशन से भी वैल्यू निकालें और फर्स्ट इक्वेशन में रख लें. दोनों तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं, है ना. सो वॉट एवर यू थिंक. So in this way we are finding the value of x from this equation. So 2x is how much?
13, ये 3y जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 3y। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमने फाइंड आउट किया x की वैल्यू। इसको कहां रखेंगे? इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास चूंकि बोर्ड शॉर्ट है जैसा भी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से एक लाइन सेपरेट करके और हम लेफ्ट और राइट पार्ट में लिख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखने हैं, है ना। ये लेफ्ट और राइट में आपको नहीं लिखना है कभी भी। आप इसको एक हैबिट बना लीजिए, चाहे आप क्लास वर्क कॉपी में कर रहे हो या आप एग्जामिनेशन कॉपी में कर रहे हो। आपको डेफिनेटली ये करना है कि आप 1 बाय 1 एक के नीचे एक स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएं। इसको लेफ्ट और राइट में कभी नहीं लिखें। बहुत बार ऐसा होता है कि लेफ्ट में आपने लिख दिया, राइट में भी साइड में आपने लिख दिया, और कई बार इधर का चेक हो जाता है और बाय द वे अगर इधर इग्नोर हो गया तो आपका वो लॉस होगा। सो ऐसा ना करें। सो वी have find out the value of x from equation number 2. We take it equation number 1 and equation number 2, and this is equation number 3, we can say. So what are we doing now? Putting the value of, और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप x की वैल्यू ही निकाले y के टर्म्स में। आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं x के टर्म में। तो फिर क्या करते कि हम इसको उधर साइड भेज देते, x को भेज देते, तो यहाँ y आता और यहाँ x के फॉर्म में कुछ आता, तो उससे भी आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन, ये सेकेंड से आपने ये फाइंड आउट किया है, तो अब इसको रखेंगे कहाँ? फर्स्ट में, इन इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। So in place of x, you have to write this one. So 9 into 13 minus 3y upon 2 minus 10y is equal to minus 12. अब देखिएगा ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना। 2 से 9 कैंसिल नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है। So now what you can do, यहां अपॉन में 2 आया है, तो हम चाहें तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दीजिए। सो 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इस टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 10y था, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 12 था, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं ये इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा हुआ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बच रहा है, उसको मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट हटा सकते हैं अभी, 9 से मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 117 माइनस 27y, और यहां कितना आया, माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो ये 117 को हम चाहें तो उस साइड ले जा सकते हैं, और ये दोनों y वाले टर्म हैं, ये दोनों y के टर्म हैं और दोनों निगेटिव हैं, तो कंबाइन हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि माइनस है इनको ऐड करते समय हम प्लस कर देते हैं। एक्चुअली माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, एडिशन प्लस नहीं होता है। सो माइनस और माइनस का एडिशन माइनस ही रहेगा। वी गेट माइनस 47y इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 24, और ये उधर जाएगा, ये पॉजिटिव था, ये उस साइड जाएगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। सो माइनस 47y इज इक्वल टू, इनको कंबाइन करेंगे, सो 141 आई थिंक, है ना। ओके, सो बोथ साइड्स वी आर गेटिंग माइनस साइन, सो दीज माइनस साइन विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड्स। अब इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 47 से इसको डिवाइड करेंगे, 47 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या करना होगा, फाइनली y तो मिल गया, x चाहिए। तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, कहीं पर भी अगर उठा के रख देंगे, जरूरी नहीं कि इसी में रखें। आप चाहें वैसे तो इसी में रखना बेहतर है, वरना आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें किसी इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू 3, तो आपको x की वैल्यू मिल जानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके वहीं रखेंगे जहां हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था। पुटिंग
दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में हम इसको रखने जा रहे हैं। क्या रखने जा रहे हैं? y इज इक्वल टू 3। कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और y के प्लेस पर क्या है? 3। तो कुछ स्टूडेंट 3y है तो 3 और y की वैल्यू 3, ऐसा ना करें, क्योंकि 3 और y का मीनिंग है यहां पर बीच में इनटू है। 3y मीन्स 3 इंटू y। सो वी विल मल्टीप्लाई हियर 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है? अगेन 3 है और 2। सो व्हाट इज x? 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 यानी 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2। सो वी मस्ट राइट फाइनल आंसर। लास्ट में क्या है? हमें फाइनली आंसर जरूर लिखना है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो इन दिस वे यू आर गेटिंग द आंसर। इस तरह से आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया। तो अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ और सम्स करते हैं, और इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट ले रहे हैं। डेसिमल में दिख रहा है। दिखने में एक बार बच्चे इसको देख करके घबरा सकते हैं कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्या है डेसिमल में है, परेशानी वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें सभी में एक प्लेस पर डेसिमल है ना? 0.2, 0.3, 1.3 है ना? एक डिजिट के मतलब डेसिमल के 1 प्लेसेस हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी डेसिमल के 1 प्लेस हैं। तो इसमें अगर हम ऐसा करें कि दोनों इक्वेशंस में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स में, तो ये इक्वेशन बहुत ईजिली हमें जो है नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। एक्चुअली आपको ये भी जानना चाहिए कि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा क्या। 0.2 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 10 2 ज़ा 20 होता है, और डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो ये इतना आ जाएगा 2.0। 2.0 मीन्स 2 ओनली, है ना? इसी तरह से सभी में होगा। तो ये हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? इक्वेशंस रिड्यूस होकर के मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। दोनों साइड में करना है और दोनों इक्वेशन में करना है बाई 10। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस यहां खिसक जाएगा, मींस 2x, और डेसिमल एक प्लेस राइट साइड मूव करेगा इसमें भी, तो ये 3y, और 1.3 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप इजीली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 से आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल लें y के टर्म्स में और उसको उठा करके यहां पर रख दें। तो अब हम इसको आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेथड आपको बता चुके हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस बार के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिलीट कर दी गई, लेकिन हम इसको सीखेंगे, क्योंकि आप और दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके जो भी कंटेंट है, एक्सरसाइज या जो मेथड है, वो सब सीखना उनके लिए ज़रूरी है। आगे ज़रूरी नहीं कि ये सिलेबस रिड्यूस होगा, लेकिन ये मेथड्स हमें आनी चाहिए, है ना? और वैसे भी आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए भी ये जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको भी समय मिले तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल करके हायर मैथमेटिक्स में जब भी आप जाएंगे तो इस तरह की कंडीशन, सिचुएशंस दी गई होंगी और उनसे आपको इक्वेशन फ्रेम करना होगा। तो चलिए इसी वे में हम जो है इस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम केवल इक्वेशंस बनाकर छोड़ देंगे, बाकी आप कर सकते हैं। जो मेथड डिस्कस हुई है तो इक्वेशंस बनाना सीखना है ना? चलिए, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज देयर? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, अब बात 2 नंबर्स की हो रही है। यही अगर क्लास 8th में करते, आप 8th क्लास में क्या पढ़ा था? वहां पर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना? तो 1 वेरिएबल में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम दी गई है, जो नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, उनको सबको हम एक को एज्यूम करते थे, दूसरे को हम उसी फॉर्म में फाइंड आउट करते थे। तो 2 नंबर्स का डिफरेंस 26 है। इसका मतलब क्या होगा? एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, दोनों के बीच में 26 का डिफरेंस है। सो सपोज 1 नंबर इज x, तो अदर नंबर कितना आ जाता है? x प्लस 26।
या x माइनस 26 भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे या तो 26 ज्यादा है या उससे 26 कम है ना। अगर हम प्लस ले रहे हैं इसका मतलब ये छोटा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया, स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर। अगर यहाँ माइनस कर देते इसका मतलब ये वाला स्मॉलर नंबर हो जाता, ये वाला ग्रेटर नंबर हो जाता। ऐसा हम करते थे क्लास 8th में, है ना, क्योंकि यहाँ 1 वेरिएबल लेना होता था। लेकिन अब हम क्लास 10th में और इसमें आप पढ़ रहे हैं इन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें अब 2 इक्वेशन से, 2 वेरिएबल से परहेज नहीं करना है ना। यहां पर हम उनको भी ले सकते हैं। सो लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब दोनों के बीच में 26 का डिफरेंस है, एंड द सेकेंड नंबर, तो इससे 26 ज्यादा वाला मान लेते हैं, तो हमारा ये स्मॉलर नंबर हो जाएगा, ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा, है ना। तो और आप चाहें तो x माइनस 26 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना है आपको कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। आगे क्या है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, है ना। तो ये थी पहली कंडीशन। सॉरी, इसमें हमें यहां पर y एज्यूम करना है ना। मैं आपको 8th क्लास की मेथड बताया कि यहां क्या करना है, चूंकि आप 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो x और y ये दोनों आप लेंगे, है ना, x लेंगे और y लेंगे। तो इस तरह से हम यहां पर लिखेंगे कंडीशन 1। व्हाट इज द कंडीशन 1? कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है कि एक दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है ना, यानी डिफरेंस इज इक्वल टू 26। डिफरेंस कैसे करते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें ये नंबर बिगर है और ये नंबर स्मॉलर है ना। तो डिफरेंस कैसे आएगा, बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन 2 दी गई है, कंडीशन 2। व्हाट इज कंडीशन 2? 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है ना। तो जाहिर सी बात है कि 3 गुना कौन सा होगा, बड़ा वाला नंबर 3 गुना होगा ना, ठीक है। तो 1 नंबर, अब बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, x बड़ा नंबर है, बिगर नंबर x है। सो बड़ा, आप इसको देखो, ये इक्वेशन बनाने का तरीका देखो, है ना, ये यही सीखना है आपको। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा नंबर होगा वो 3 टाइम्स होगा। तो हम यहां पर इस तरह से कर रहे हैं, बिगर नंबर इज, इसका मतलब इक्वल, बिगर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अदर मतलब छोटा नंबर, बड़ा नंबर है 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। इस तरह से आप जो है इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू वाई मीन्स 3y। जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इनको जो है किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड है, ये ध्यान रखिए। जब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो मेथड का जिक्र है आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप दूसरी मेथड से करते हैं तो हो सकता है कि आपको नंबर बहुत कम मिले, 0 मिले या बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप इन दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको छोड़ते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, यानी थर्ड का सेकंड पार्ट। फिर से हमें वही ध्यान रखना है, वी आर स्टडिंग नाउ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल से हमें एक क्लू मिल जा रहा है ना, कि 2 एंगल हैं और दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो ये थर्ड का सेकंड पार्ट हम यहां ले रहे हैं, लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। आप जानते हैं एंगल को हम नॉर्मली डिग्री में मेजर करते हैं, तो दोनों x डिग्री और y डिग्री ये दोनों एंगल्स हो गए। अब क्या बोला जा रहा है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। पहली बात तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कंडीशन 1 हमारी यही हो गई
सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, उसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एज वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ठीक है। अब यहाँ तो हमने डिग्री लगाया है, लेकिन अब आगे जब नॉर्मल सॉल्व करेंगे नॉर्मली, तो वहां पर हम डिग्री का साइन हम छोड़ सकते हैं, और लास्ट में जाकर के हमें याद रखना है कि एक्स और वाई हैं क्या, एक्स और वाई एंगल्स हैं, और जब एंगल्स हैं तो उनको हमें डिग्री में लिखना है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, द स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री, है ना। तो यहां पर हमारी कंडीशन 2 हो गई, एक्चुअली यही जो हमारी कंडीशन 1 थी और ये है हमारी कंडीशन 2, है ना। तो कंडीशन 2 क्या है, द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर छोटे नंबर से ज्यादा है, कितना, 18। तो दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला क्या है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों में जो है डिफरेंस कितना है, 18 है, तो लार्जर नंबर हम सपोज x को लार्जर मान ले रहे हैं और इसको स्मॉलर मान ले रहे हैं, तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 180 है और यहाँ 18 है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लार्जर नंबर या लार्जर एंगल ये एक्सीड कर रहा है ना। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री, किससे, स्मॉलर एंगल से। ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्जर एंगल इज 18 मोर देन स्मॉलर एंगल, ये भी वही मीनिंग है ना। तो इसको जब आप इधर लाएंगे तो हमें वही चीज मिल जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट लिख दें या आप इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख दें। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम लेंगे इसकी, ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम भी थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन है, क्योंकि आप इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी बनाना सीख रहे हैं, और ये बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है ना। सो नाउ वी आर टेकिंग 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं। फ्रैक्शन में बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बार मेथड बता दे रहा हूँ कि इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ एज्यूम करना होता है। सो फ्रैक्शन बिकम्स दिस इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की बात है ना, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, है ना। सो द फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। क्यों, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो इस तरह से फ्रैक्शन भी हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमें जो है जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1, a fraction becomes 9 upon 11, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन कुछ दूसरी हो जा रही है ना। तो न्यूमरेटर हमारा क्या था, x, और डिनोमिनेटर क्या था, y। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं ये। अब जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 कर दिया, अब जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, 9 अपॉन 11। नाउ हाउ यू विल सॉल्व, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 9 का इसमें होगा। 11 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 11x प्लस 11 2 22। 9 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 9y प्लस 18। व्हाट वी शुड डू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 11x और ये 9y जब इस साइड आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, और ये 22 जब इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। इक्वेशन मिल गई हमें फर्स्ट, इज इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन 2,
कंडीशन 2 क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब की बार कह रहे हैं कि 3 ऐड करो दोनों में, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार ये ऐड करने के लिए, कोई ऐसा इक्वेशन हो सकता है कि जिसमें कह दे कि इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना, तो कभी एडिशन और कहीं सब्ट्रैक्शन के लिए भी बोल सकता है। अब क्या करना है, सेम उसी मेथड से 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर दोनों टर्म में, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर दोनों टर्म में करेंगे, फिर से एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब एक एज वाला सवाल ले लेंगे, इसका 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हम ले रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3 से है ना। तो 5 years hence द एज ऑफ, अब जैसे कुछ बच्चों को हेंस में दिक्कत हो रही है, 5 year hence, तो ये क्या है, मतलब आपसे 5 साल बाद की बात कर रहे हैं या 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। सो वी विल सी फ्रॉम द लैंग्वेज। द एज ऑफ जैकब विल आया है, विल किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए, अगर वॉज होता तो पास्ट के लिए, तो यहाँ पर विल आया, ध्यान रखिएगा। 5 year hence यानी अब से 5 साल बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। तो हम क्या करें, और लास्ट में देखिए क्या पूछा, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी दोनों की अभी की एज पूछी हुई। तो क्यों ना हम अभी की एज को मान लें, एज्यूम कर लें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years। ठीक है, जैकब की अभी की एज को हम x years ले रहे हैं, और कौन है उनके साथ में, उनके सन है ना। जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years। ठीक, तो x कौन है, जैकब की एज है, y क्या है, उसके सन की एज है। अब क्या पूछा गया है, तो हम फिर से कंडीशन 1 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 1, फाइव ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल, है ना। तो अब से फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सपोज मैं हूं, मेरा कोई स्टूडेंट है ना, सपोज मेरी एज 35 है और मेरे स्टूडेंट की एज जो है 15 है ना। 35 मेरी एज और स्टूडेंट की एज 15। अब से 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद मेरी एज भी 5 मोर हो जाएगी, 5 प्लस करना पड़ेगा मेरी एज में, 35 + 5 यानी 40, और स्टूडेंट की एज जो 15 है उसमें भी 5 प्लस करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं ही बढ़ रहा हूँ और स्टूडेंट जो है उसकी एज नहीं बढ़ रही है, दोनों बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। तो 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, जैकब्स एज विल बी, अभी x ईयर्स का है और चूंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो जैकब कितना हो जाएगा, 5 साल और बड़ा हो जाएगा। ठीक, और सन जो है उसका, उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी, अभी y है वो भी 5 साल प्लस हो जाएगा, 5 साल वो भी बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद की कंडीशन ये हो गई, दोनों 5-5 साल ज़्यादा हो गए। अब इसमें एक इक्वेशन दी है, एक रिलेशन दिया है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो उस समय 5 साल बाद की बात है, यानी इस कंडीशन में जैकब की एज जो है वो अपने बेटे की एज से 5 साल ज़्यादा होगी, सॉरी 3 times जो है होगी, 3 times यानी 3 गुना होगी, है ना। तो अब इसको कैसे समझना चाहिए, इसको इक्वेशन कैसे बनाना चाहिए, जैकब की एज होगी यानी इज या विल जो भी है 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन, ऐसे हमें समझना चाहिए। जैकब की एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे और ऐसे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो जैकब की एज कितनी है 5 साल बाद, ये है, तो यानी
x plus 5 that will be is equal to 3 times of his son। ऐसे अब x plus 5 is equal to 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे 3y plus 15। तो अब इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, सॉरी इसको इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनानी है। तो 5 years ago, 5 साल पहले, अब जैसे हम 5 साल बाद की बात कर रहे थे, अभी 5 साल पहले, अगर एगो भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आगे भी देखिए, आगे भी उसका हिंट है। 5 years ago जैकब्स एज वॉज, अब यहाँ वॉज आया है, वॉज का मतलब था, है ना, तो ये पिछली बात है, पुरानी बात है। जब पुरानी बात होगी तो क्या होगा, आपकी एज जो है अभी से कम रही होगी ना, लेस रही होगी। तो यहाँ पर अभी जब ओल्ड एज निकालनी है अपनी, तो वहां पर अपने क्या करना है, माइनस करना है ना, प्रीवियस एज में माइनस करना है। तो 5 year ago, तो अब 5 साल पहले की अगर बात करें तो 5 years ago जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज अभी कितना साल का है, x ईयर्स का है, 5 साल पहले 5 साल कम होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। और उसके सन की एज कितनी होगी, अभी y है वो भी उससे 5 साल कम होगा, तो ये आ जाएगा। 5 साल पहले की कंडीशन ये हो गई। अभी क्या करना है कि वो 7 टाइम्स था, तो जाहिर सी बात है कि फादर 7 टाइम होगा, तो जैकब की एज यानी x माइनस 5 वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, इतना। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5, इसको इधर ले जाइए, x माइनस 5 7y माइनस यहाँ पर आएगा 35, ठीक है। तो इसको इस साइड ले आएंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपको जो है x की जो वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखिएगा, हाँ, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि वर्ड प्रॉब्लम में कई बार ये होता है कि स्टूडेंट इतना सॉल्व करते करते लास्ट में भूल जाता है और लास्ट में आंसर लिख कर आते हैं x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, और वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x और y क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है ना। प्रॉब्लम पढ़ी है, प्रॉब्लम में कहीं भी x और y का जिक्र नहीं है। x और y क्या है, ये हमने एज्यूम किए, हमने खुद एज्यूम किए, माने हैं कि x कौन है, इतना ये है, y ये है ना। तो क्वेश्चन बनाने वाले को पता नहीं है x और y क्या है, तो वो तो कह रहा है कि भाई उनकी प्रेजेंट एज बताइए, ना कि वो कह रहा है x की वैल्यू y की वैल्यू बताइए। तो आपकी उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो जैकब की है, तो आप बोलेंगे कि जैकब्स प्रेजेंट एज इज दिस, और y की वैल्यू जो आएगी वो उसके सन की एज है, तो आप लिखेंगे हिज सन्स एज इज दिस। इस तरह से आज के सेशन में हमने ये सीखा कि हाउ टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब अगले सेशन में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग।